सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। ये क्षण अलौकिक, ये पल पवित्रतम है। राम सिर्फ हमारे नहीं हैं, राम तो सबके हैं। पूरा देश आज दीपावली मना रहा है। सागर से सरयू तक हर जगह राम नाम का वही उत्सव भाव छाया हुआ है। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। January 22nd, 2024 will go down as a significant day in the history of independent India. It was the day when a spellbinding Ram Mandir was consecrated in Ayodhya, the abode of Ram. ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। And at what Hindus believe is his precise Janmasthan or place of birth, the idol of Ram Lalla, or now called Balak Ram, resembling a 5-year-old child, was unveiled and infused with life through the Pran Pratishtha ceremony. मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। An entire nation watched in awe. This was a moment that a large section of the country was waiting for several generations, even centuries. It was a Supreme Court judgment that unanimously ruled in favor of the Hindus in 2019 that paved the way for this occasion.
People watched the Pran Pratishtha ceremony at home, in their offices, visited temples, paid their own obeisance to Lord Ram if they could not travel to Ayodhya physically. And of course, there were thousands present in the temple town at the given moment. बिल्कुल रोंग खड़ा हो गया मैं, और इतना भाव भरा हुए थे कि आंखों से पानी छलक गया, रोना आ गया। बिल्कुल। अच्छा। हाँ, और मेरे प्रभु के दर्शन होते ही दिल गदगद हो गया। इतने दिनों से वेट कर रहे थे कि कब प्रभु राम आएंगे, कब प्रभु राम आएंगे। यहाँ पर जो रामलला की मूर्त है वो बड़ी ही अलौकिक है। इसमें आप देख सकती हैं कि बहुत ही अच्छी मंदिर में नक्काशी जो की गई है वो आपको त्रेता कालीन युग की दिखेगी, और ये सब पूरा देन आपका मोदी और योगी जी का है। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, जब भी यहाँ कोई दर्शक आ रहा है और उसको दर्शन कर रहा है तो ये पूरे देश में ही नहीं अपितु पूरा विश्व इसको देखकर हर्षोल्लासित हो रहा है। The Yajman for this momentous occasion was the Prime Minister Narendra Modi himself. It was he, along with the Rashtriya Swayamsevak Sangh Chief Mohan Bhagwat, the Uttar Pradesh Governor Anandiben Patel, the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, and the priest of the Ram Mandir Satyendra Das, who were present in the Sanctum Sanctorum, along with other religious heads who performed the ceremony. And when the idol was revealed to the world, when those eyes opened, it was a moment to behold. There were tears, there was adulation, there was joy. For many, this was a dream fulfilled, for which a long legal battle had to be waged. The history of the Ram Janmabhoomi movement has had its phases of acrimony, and this included the demolition of the Babri Masjid in 1992. Will this moment of the Pran Pratishtha usher in a new era of harmony between religious communities in India is a question that needs to be answered with time. But what was evident in the speeches that were delivered shortly after the consecration ceremony was over was that there would be no triumphalism. The speeches indicated that no one particular community had a pride of place in India at the cost of others. When Mohan Bhagwat spoke, he said that dispute should be resolved and everyone should unite as one. प्रधानमंत्री जी ने तब किया, अब हमको भी तब करना है। राम राज्य आने वाला है, वो कैसा था? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहु व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब निर्दंभ धर्मरत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। हमको इस प्रकार के व्यवहार को रखने का तप आचरण करना पड़ेगा। हमको भी सारे कलह को विदाई देनी पड़ेगी। छोटे छोटे परस्पर मत रहते हैं, छोटे छोटे विवाद रहते हैं, उसको लेकर लड़ाई करने की आदत छोड़ देनी पड़ेगी। Prime Minister Narendra Modi spoke of the ideals of Ram being the foundation of India's Astha, as well as his values underpinning the soul of India. And there was also an emphasis on Sabke Ram. ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है।
राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं हैं, राम तो सबके हैं। Times Network's editor-in-chief Navika Kumar was witness to the consecration ceremony in Ayodhya, and she had the opportunity to interact with the who's who among the invitees. And by the one and only superstar Rajnikant ji. Rajnikant ji, you are here at the Mandir Parisar. Jai Shri Ram is the chant everywhere. What do you feel? Jai Shri Ram. It was a great opportunity to be here in this auspicious day. Historic day. I am blessed. I'm joined by Kumar Mangalam Birla ji, and we are all here today. A very historic moment. Many generations struggled but didn't get this opportunity. What does it feel like to you from your vantage point? Well, you know, I'm a big Ram Bhakt, so it's very special, even more special for me. And I think this is a symbol of hope, optimism, positivity. Feels great to be sitting here. It's quite unbelievable. Special moment. You're here. What does it feel like to be here? It's a big pride to be here. I feel extremely lucky and blessed. I just wish I could have got my daughter Raha here to experience this historic moment. But feel great consolation, great energy, and Jai Shri Ram. This moment, what does it feel like? I think we are truly blessed to be here. It's beautiful. It's a very humbling feeling to just be here today. And What do you? it's just so many people back at home in Mumbai sent messages and called actually for us as well. And it's just such a positive energy over here. Jai Shri Ram. What's the feeling? What's the feeling? It's a special feeling. Special feeling. Looking forward to it. Great. Everybody is soaking in the atmosphere, and some of us are here. Opportunity of a lifetime. Indeed, I would say a dream come true for millions and billions of people in our nation and across the globe. So, And message for dream the has been world and realized. Indians today. come and take the blessings. There cannot be anything bigger than that. And we also got you this glimpse from inside the temple. भव्य रामलला के दर्शन कर लीजिए। आपने आज सुबह तस्वीर देखी होगी, लेकिन जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो उस भव्य रास्ते से होते हुए, और यहाँ दिखाइए, इस वक्त यहाँ पर आरती होने जा रही है। तो आपको टाइम्स नाउ न भारत पर हम आरती भी दिखाएंगे। राम मंदिर में पहली बार जो आरती हो रही है उसके आप साक्षी बनेंगे। ये तस्वीर देखिए, जिस तरह से मंडप सजता है उस तरह से राम मंदिर इस वक्त सजा हुआ है, और इतनी खूबसूरत छटा चारों तरफ बिखरी हुई। ये सोने के दरवाजे, जय श्री राम, जय श्री राम। सोने के दरवाजे देखिए, नक्काशी देखिए, फूलों को देखिए। जिधर आप देखेंगे आपका मन जो है वो राममय होता चला जाएगा। रामलला के और करीब लेकर चलता हूं। पहली बार किसी न्यूज चैनल का कैमरा राम मंदिर के अंदर पहुंचा है, और आप देखिए भक्त यहां पर राम मंदिर में हर कोई प्रभु श्री राम की साथ सेल्फी लेता हुआ। प्रभु राम को निहार लीजिए, उनके हाथ में तीर है, उनके पास धनुष है, और आपने टीवी पर जो तस्वीर देखी होगी प्रभु राम की, उससे भी ज्यादा भव्य, मोहक और खूबसूरत दिख रहे हैं। और नीचे जो रामलला टेंट में थे वो भी रखे हैं, विराजमान है। उसके नीचे पूरे सोने की नक्काशी की गई है, और आप देखिए चारों तरफ से ये दरवाजा सजाया हुआ है। ऊपर भगवान विष्णु दिखाइए, दरवाजे के ऊपर भगवान विष्णु सोई हुई मुद्रा में दिख रहे हैं। इन मालाओं को देखिए अपने आप में भव्य। Those who were in Ayodhya to witness the event were mesmerized. बड़ा मन विचित्र सा था, स्तब्ध था, समझ ही नहीं पा रही थी। मुझे मेरे भावों पे अंकुश ही नहीं था। वो अगल बगल के जो संत थे बार बार
मुझे कह रहे थे शांत हो जाओ। मैं अशांत नहीं थी, पर प्रसन्नता, खुशी, आनंद कुछ ऐसा था। अपने आराध्य का दर्शन करके आंखें ऐसे ही बरबस बरस रही थी। 500 साल की प्रतीक्षा हो और फिर व्याकुल प्रतीक्षा हो, और प्रभु आए और इतनी भव्यता से आए, तो इतनी दिव्यता से आए। फिर निश्चित रूप से वो क्षण ऐसे थे कि उसने पूरे प्राणों में रोमांच भर दिया। When you were speaking after the प्राण प्रतिष्ठा, आपने ये कहा था, आप काफी इमोशनल और भावुक दिख रहे थे। टेल अस कि जो एक्सपीरियंस रही प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की, उस समय आपको क्या लग रहा था? ऐसा है, अंतःकरण वास्तव में भरा हुआ था। 500 वर्षों की प्रतीक्षा, लाखों लोगों का बलिदान, हमारे ऊपर की जिम्मेदारी और उसकी पूर्णता का समाधान, ये सारी बातें एक साथ घुल मिल करके मेरे सामने आ गई थी और इसलिए भावुक होना स्वाभाविक था। और दूसरी ओर इस देश का वह प्रधानमंत्री जो स्वयं हमारे लिए एक अत्यंत बड़ा आदर्श बनकर के खड़ा है, जिसने अपने अंतःकरण में आधुनिकता के साथ प्राचीन संस्कारों को बचाए हुए रखा है, जो हमारे ठाकुर जी को देखते ही साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है, जो 11-11 दिन का उपवास करता है, जो भूमि पर शयन करता है ताकि मैं भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा के लिए अपने को योग्य बनाऊं। ये सब सोच करके भी आश्चर्य होता है अपने आप इस कराल कलयुग में भी इस प्रकार के किसी व्यक्ति को अपने पास पा करके और भावुक हो जाना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है।